Hello everyone. My name is Samir Tyagi, and the topic for today's video is Google Big Table, an overview of Google's scalable high performance NoSQL database. So, let's get started with the video. So, it is the logo of Google Big Table. Let's get on another slide. So, now let us see the definition, purpose, and history of Google Big Table. First, the definition. Google Big Table is a distributed storage system developed by Google designed to handle large amount of structured data. Purpose: supports applications requiring low latency, high throughput, and scalability. Then history. Developed by Google in 2004, the underlying technology for many Google services like Google Earth, Google Maps, and Gmail. सो गूगल बिग टेबल जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम है जो डेवलप किया गया था गूगल के द्वारा। और इसका काम मेन पर्पस था कि लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करना, उस पर वर्क करना। और फिर वही इसका पर्पस है उन एप्लीकेशंस को सपोर्ट करना जो लो लेटेंसी रिक्वायर करते हैं, हाई थ्रूपुट देते हैं, एंड स्केलेबिलिटी जिनको चाहिए रहती है बहुत ज़्यादा, तो उन एप्लीकेशंस को ये सपोर्ट प्रोवाइड कर। और हिस्ट्री में ये कि गूगल के द्वारा ये 2004 में डेवलप किया गया था फॉर सम गूगल सर्विसेज लाइक गूगल अर्थ, गूगल मैप्स एंड जीमेल। यस, सो इट वाज ऑल दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर गूगल सर्विसेज। Now let us see the key features of Google Big Table. First, scalability. Seamless scaling to petabytes of data and billions of rows. High availability. Supports high availability for critical applications. Consistency model. Provides eventual consistency for scalable, reliable data management. Then the last one, low latency. Optimized for low latency, real-time data processing. सो यहाँ पे बिग टेबल के कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि स्केलेबिलिटी, हाईली स्केलेबल रहता है, बहुत अमाउंट ऑफ डेटा को ये वर्क कर सकता है उस पर। फिर हाई अवेलेबिलिटी, इस पर मीन्स डेटा हमेशा अवेलेबल रहता है 20 वेन एवर यू नीड द डेटा। देन कंसिस्टेंसी मॉडल, कंसिस्टेंट रहता है ये मॉडल, रिलायबल रहता है, स्केलेबल रहता है, और डेटा मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है, तो कंसिस्टेंसी मॉडल है ये। और फिर लो लेटेंसी, ऑप्टिमाइज फॉर लो लेटेंसी, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, ये लो लेटेंसी वाले अच्छा वर्क करता है। These are the features. Now let us move on the next topic, that is big table architecture. As you can see, a picture diagram of architecture has been given. Let us study deeply about it in the next slide. So the Google Big Table architecture, row-oriented model, organizes data in rows and columns. Column family storage. Data is stored in column families. Each column family holds multiple columns. Versioning supports multiple versions of data within each cell. Cluster design distributed across multiple servers to ensure reliability and scalability. So these are the uh, components of a big table architecture. Like how it is structured. First is row oriented model, जो डेटा टेबल का आर्किटेक्चर वो मॉडल है, वो रो ओरिएंटेड रहता है, कॉलम्स रहते हैं, उसके अलग अलग वर्जन्स रहते हैं, क्लस्टर डिजाइन रहते हैं टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द बिग टेबल so that it can handle more of the data, large amount of data very easily, and with high scalability, feasibility, and fast working. Yes. So let's move on to the next slide. Now let us see how Bigtable stores data. Rows and columns. Each row has a unique key, and columns are organized by families. Then sparse storage. Data model allows efficient storage of sparse data with variable number of columns. Then timestamped data. Cells. Each data cell is timestamped, allowing easy retrieval of historical versions. और इसमें बताया गया है कि जो बिग टेबल रहता है वो, जैसा कि पता है कि टेराबाइट्स और इवन पेटाबाइट्स तक का डेटा स्टोर कर सकता है, तो इसके लिए उसको बहुत बड़ी स्केलेबिलिटी और बहुत अच्छा फंक्शंस चाहिए रहता है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर चाहिए जिससे वो डेटा को स्टोर कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसके लिए वो कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स यूज़ करता है या फीचर्स यूज़ करता है जो अपने उसके मॉडल में लगाता है, जैसे कि स्टोरिंग द डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। उसमें भी दिया गया है कि रो को यूनिक की के थ्रू स्टोर करा जाता है और कॉलम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय families.
With sparse storage, data model allows efficient storage of sparse data with variable number of columns, यानी कि वो columns के थ्रू अच्छे से स्टोर करा जाता है बहुत सारे amount of data. Time stamped cell. Each data cell is time stamped, allowing easy retrieval of historical version. यानी कि यानी कि each data cell is time stamped, allowing easy retrieval of historical versions. यानी हमें कोई पुराना वर्जन चाहिए तो वो आराम से यूज करा जा सकता है क्योंकि ये टाइमली स्टोर्ड रहता है. अब हम देखेंगे कि टेबल डेटा मॉडल और रिलेशनल मॉडल्स जो आमतौर पर यूज करे जाते हैं इन दोनों में मेनली क्या डिफरेंस है. क्यों बिग टेबल डेटा मॉडल आजकल वाइडली यूज किया जा रहा है ओवर रिलेशनल मॉडल्स. सो लेट अस सी बिग टेबल data model versus relational models. NoSQL system. Unlike traditional relational databases, Big Table does not use foreign keys, joins, or complex transactions. Then flexible scheme. Column-oriented schema-less design allows for dynamic addition of columns. Then third one, use cases. Ideal for time series data, large data sets, and real-time analytics applications. तो यहाँ पे बिग टेबल डेटा मॉडल का एडवांटेज और रिलेशनल मॉडल्स दिया गया है. फर्स्ट इज नो सीक्वल सिस्टम. पुराने ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस की तरह बिग टेबल के कोई भी ऐसे जॉइंस, फॉरेन कीज और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस नहीं रहते हैं. बहुत सिंपल और इजी टू यूज रहता है. देन फ्लेक्सिबल स्कीमिंग. कॉलम ओरिएंटेड स्कीमा लेस डिजाइन अलाउज फॉर डायनेमिक एडिशन ऑफ कॉलम्स. यानी कि यहाँ पे स्टैटिक एडिशन की जगह डायनेमिक एडिशन आ जाता है, या फिर आप कहें कि कहीं पे भी कैसे भी यूज कर सकते हैं किसी भी डेटा को जब ऐड करना है, कॉलम्स को ऐड करना है. सो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्कीमा डिजाइन नहीं रहता है. देन यूज केसेस. आइडल फॉर टाइम सीरीज डेटा, लार्ज डेटा सेट्स एंड रियल टाइम एनालिटिक्स एप्लीकेशन. यानी कि ये बहुत आइडल रहता है टाइम सीरीज डेटा के लिए, या फिर वो जो लार्ज डेटा सेट्स रहते हैं, या फिर टाइम रियल टाइम एनालिटिक्स डेटा एप्लीकेशंस रहते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं. ये जो टाइम रियल टाइम एनालिटिक्स एप्लीकेशंस रहते हैं जिनको बहुत रियल टाइम डेटा की ज़रूरत रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा डेटा मॉडल है बिग टेबल डेटा मॉडल ओवर रिलेशनल मॉडल्स. नाउ लेट अस सी द रियल वर्ल्ड यूज केसेस ऑफ गूगल बिग टेबल. ये रियल वर्ल्ड में किस तरीके से कहाँ पे यूज करे जाते हैं, इनका क्या ज़रूरत रहती है, इस चीज़ को देखते हैं हम. First, search and indexing, core component of Google search, providing quick data retrieval. Second, analytics and IoT data, handles large-scale data for analytical applications and IoT device management. Financial services, used in fraud detection, risk management, and stock price analysis. Then maps and geographic data, underpins Google Map and Earth for high-resolution large data sets. तो यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड यूज केसेस दिए हैं गूगल बिग डेटा के, बिग टेबल के, वो देखते हैं हम. सर्च एंड इंडेक्सिंग, कोर कंपोनेंट ऑफ गूगल सर्च, प्रोवाइडिंग क्विक डेटा रिट्रीवल. यानी कि हमें फटाफट बहुत जल्दी कम समय में डेटा प्रोवाइड करना है, ये इसका एक काम है. फिर एनालिटिक्स एंड आईओटी डेटा, हैंडल्स लार्ज स्केल डेटा फॉर एनालिटिकल एप्लीकेशंस, आईओटी डिवाइस मैनेजमेंट. यानी कि जो एआईएमएल या फिर आईओटी के लिए जो जिसमें एनालिटिक्स लगता है या फिर वो वाले डेटा सेट्स रहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मॉडल है. फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, यूज्ड इन फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टॉक प्राइस एनालिसिस. यानी कि जो ये फ्रॉड डिटेक्शन रहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट रहते हैं, या फिर स्टॉक प्राइस एनालिसिस रहता है, जो भी फ्यूचर पर्पस काम रहते हैं कि आगे चल के क्या होगा, या फिर कुछ सिक्योरिटी बेस्ड काम रहते हैं, तो ये के लिए बहुत अच्छा यूज केस रहता है गूगल बिग टेबल का. देन मैप्स एंड जोग्राफिक डेटा, underpins Google Maps and Earth for high resolution large data sets. यानी कि जो Google Maps और Google Earth है उसके लिए ये उस ऐप उन सर्विसेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और वेरिएबल अमाउंट ऑफ डेटा रहता है. कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं रहती, वो कैसा भी हो सकता है, तो उसके लिए ये बेस्ट रहता है. और क्योंकि हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, लार्ज डेटा सेट्स को स्टोर कर सकता है, तो ये उसके रियल वर्ल्ड यूज केसेस है गूगल बिग टेबल. नाउ इंटीग्रेशन विद बिग डेटा इकोसिस्टम. Apache HBase compatibility. Google Bigtable is compatible with HBase, allowing integration with Hadoop. GCP integration works with other Google Cloud services.
for big data analytics. APIs and libraries supports REST APIs, gRPC in client libraries in multiple languages. So यहाँ पे इंटीग्रेशन बताया गया है बिग डेटा इकोसिस्टम का इसके साथ। तो अपाचे एज बेस कंपेटेबिलिटी यानी कि आराम से कंपेटेबल है एज बेस से, जिसकी वजह से ये अच्छे से इंटीग्रेट हो पाता है हडूप के साथ। GCP इंटीग्रेशन वर्क्स विद अदर क्लाउड सर्विसेज फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स लाइक, इसमें एग्जांपल दिया गया है कि डेटा फ्लो, डेटा प्रॉक इसके साथ। फिर एपीआईज एंड लाइब्रेरीज, डिफरेंट एपीआईज एंड लाइब्रेरीज के को ये सपोर्ट करता है, जिससे बहुत इजी रहता है वर्क करना इस पे, इस मॉडल पे, क्योंकि ये अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी सपोर्ट करता है। सो इट वाज ऑल। नाउ लेट अस सी द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ Bigtable. Advantages: high scalability and performance for large data sets, low latency reads, writes, suitable for real-time applications, and then flexibility in schema design and versioning. Then limitations: not suitable for transactional applications, requires understanding of NoSQL data modeling, and limited querying capabilities compared to relational databases. So these were all the advantages and limitations which is provided by Google Bigtable. Now let us see the conclusion and future scope. Google Bigtable provides a high scalable, low latency database solution for structured data, which is very important for any big firms or big companies which need to work upon large database sets. So for them, Google Bigtable is a very good option. Then future trends: increase adoption in IoT, real-time analytics, and machine learning. Evolution toward great integration with cloud native applications. यानी कि फ्यूचर ट्रेंड में बिग डेटा टेबल का यूज दिखता हुआ बहुत आसानी से दिख रहा है बिग टेबल का, बिकॉज ये आईओटी में भी यूज हो रहा है, रियल टाइम एनालिटिक्स में भी इसका बहुत यूज बढ़ते जा रहा है, और मशीन लर्निंग में तो बढ़ ही रहा है इसका यूज because of the features it provides. Then the evolution toward great integration with cloud native application. So that was all about Google Bigtable. I hope you understand it. Now let me conclude it by saying that yes, Google Bigtable is a very good option for big firms and big companies. So thank you.